Good evening, friends. Jai Hind to all of you. As you all know that the exam is just around the corner, so I hope your preparations for the JKPSC mains is well on track. Uh, through a few video series that I'll be coming up, I will try to provide you with some value addition materials. Some value addition I will try to provide you so that you are able to enrich your answers और आप उसको अच्छे से लिख पाए. Little bit about me. My name is Navjot Singh. As you already know, I am an enforcement officer in Government of India and a former officer of the Intelligence Bureau, having an experience around close to a decade in the government. So my here agenda will be having an in-depth analysis of understanding of the internal security. I will try to give you an idea about how the dynamics of internal security approach and what is the requirement and what is the kind of data or the facts or any reports of the government of the Ministry of Home Affairs that you can add in your answers to enrich them. All right. So to begin with, we will start with the insurgency in the northeast region. We will try to understand a few of the parameters, the main actors in the northeast, and how we can approach in addressing the problem of insurgency in the northeast region. इसको हम पूर्वोत्तर भी कहते हैं, northeast. So let's start by understanding a little bit about it. So first of all, I will try to explain through drawing the map of India, where we will try to plot the various problems in the northeast. Okay. So we will quickly draw a map of India, though this will not be a very accurate one. We will try to draw it as legibly as possible to make you have a rough idea. It is not to scale. Map is not to scale. So it is an indicative map to give you an idea about the problem. So सबसे पहले अगर हम देखें जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, the area that is there in Arunachal Pradesh, okay. So if we highlight this part, try to understand the points that I'll be trying to highlight here. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अरुणाचल में जो insurgency, that is majorly led by one of the important insurgent groups, United Liberation. You can please note down these organizations. You can, when you draw the map in the answers, you can label them, so it will give the examiner a good idea of your understanding. So United Liberation Movement of Arunachal, so it is ULMA. I have worked in this region, so I can just give you a little bit nuanced understanding of how you can approach your answer. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो एरिया है उसकी अगर हम बात करें, ये जो this region, this part that we have here, majorly this is dominated by NSCN IM. What is NSCN IM? It is National Socialistic Council of Nagaland. ठीक है. NSCN and IM is Isaac Muiva. These were the two main founders of this organization. One of them is dead. Check out which one. ठीक है. Along with that, there is another organization which leads the charge vis-a-vis the Naga insurgency. So that is NSCN-K. K faction. K is the Khaplang faction. It is the Khaplang faction. So this operates across the border. यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो
in this region, there is a around 25-30 kilometer region. This region is called as FMR. यहाँ पे FMR, फ्री मूवमेंट regime. तो फ्री मूवमेंट regime works in this area. ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड से म्यांमार से भी, because they have cultural ties, people have cultural ties in this region from with each other, so they are allowed to trade and exchange pleasantries. cultural ties हैं तो, but this also becomes a, क्या बनता है, conduit बन जाता है, it becomes a conduit for insurgency. तो insurgents भी इस रूट का फ़ायदा उठा के इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वो ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ पे ये था कि NSCN खापलांग, NSCN IM इसाक मुइवा. These are the two major organizations, major insurgent groups which are targeting, which have been involved in the spreading the insurgency in the this region, Naga dominated region. And इनका जो major objective क्या है, to create Greater Nagalim. So they want to create a Greater Nagalim region which consists of all the Naga inhabiting regions. तो अगर हम बात करें, it extends beyond, it extends to like some regions of Myanmar, some of Assam, some of Manipur. तो ये पूरा region चाहते हैं कि हमारा एक Naga dominated region हो जाए. ठीक है, इसके साथ अगर हम आगे बात करें, if we have noted down, okay, let me draw again to give you clarity. Quickly we will draw because make you understand a bit better. तो हम क्रॉस सेक्शन ही बनाते हैं इसमें. तो यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर तो देख लिया था ये वाला रीजन. अब अगर हम बात करें, मोस्टली ये जो आपका रीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये कौन सा रीजन है आपका? दिस इज मोस्टली असम बेल्ट. ठीक है, दिस इज वी कैन ड्रॉ हेयर. यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, तो यहाँ पे अपर असम और लोअर बैंक और अपर बैंक, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक कहते हैं. जो इसके ऊपर वाला एरिया होगा उसको हम नॉर्थ बैंक कहते हैं, और ये इसके नीचे वाला इसको हम कहते हैं साउथ बैंक. ठीक है, तो ये दो एरियाज़ हैं जो पूरे असम. अब असम की इंसर्जेंसी को समझना भी ज़रूरी है. व्हाट आर द मेन एक्टर्स इन्वॉल्व इन दी इंसर्जेंसी इन असम. सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी आ जाती है NDFB, द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो लीड करती है, NDFB, दैट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. तो यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पे जो एक 4 डिस्ट्रिक्ट्स, एन एरिया ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज़ नोन एज BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें बक्सा, उदालगुड़ी, कोकराझार और चिरांग, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच कम इन द BTAD एरिया. तो यहाँ पे दिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, सो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ सेपरेट होमलैंड. जब ये शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की, तो इनका ऑब्जेक्टिव था सेपरेट होमलैंड फॉर बोडोज. सी, मैं यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली बता रहा हूँ. अगर आपको डिटेल में हर नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी के बारे में वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की अगर हम सबसे पहले नागा इंसर्जेंसी की बात करें, फिर बोडो इंसर्जेंसी है, और भी बहुत सारी, तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए या ग्रुप में मेंशन कीजिए. हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज हैं उन पे अलग वीडियोस लेके आएँ. तो ये सेपरेट होमलैंड की डिमांड करते थे. इनको लगता था कि जो असमीज़ पीपल हैं वो उनको डोमिनेट कर जाएंगे, इनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे. तो इसीलिए ये इन्होंने कैंपेन चलाया पूरा
ये एक्सटॉर्शन में इंडल्ज करते थे, कैटल स्मगलिंग, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे इनके। तो ये इनका एक मेन एजेंडा रहता था। तो अगर हम मेजर लीडर्स की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट मेन लीडर्स ऑफ दिस NDFB, तो इनके मेजर लीडर थे रंजन दायमरी, फाउंडर, ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हु वाज ही? रंजन दायमरी। आप ये नाम बस याद रख लें, एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, द फाउंडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ठीक है। और इनके एक और मेन लीडर्स थे, प्रेसिडेंट थे जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम था बी सरायगोवरा, सरायगोवरा। तो ये दो लीडर्स हैं, आपने ये मेंशन कर देना है। ये चार BTAD के जो 4 एरियाज़ हैं, आपने उसको भी मेंशन करना है, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा मेजर जो इंसर्जेंट ग्रुप है जो असम में ऑपरेट करता है, दैट इज़ उल्फा। उल्फा इंडिपेंडेंट और उल्फा डिफरेंट फैक्शंस बन गए थे। तो इनका ये है यूनाइटेड, इनका असम की जो असम मूवमेंट हुआ था वो सब सारा स्पीयरहेड किया था। इनको लगता था कि जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है, जो इलीगल माइग्रेशन असम में हो रही है, उसकी वजह से जो असमीज पीपल हैं उनके जो राइट्स हैं वो मिनॉरिटी में हो जाएंगे और उनकी जो वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी कैंपेन चलाया। 1979 में शिवसागर में 1979 में शिवसागर में ये शुरू हो गया था पूरा ये जो इनका मूवमेंट था, टू क्रिएट मोर ऑटोनॉमी एंड मोर पावरफुल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ असम। तो इनके मेन लीडर थे परेश बरुआ। So the main leader of this movement was Paresh Barua. So you have to understand, you just need to remember the major leaders here, कि इनके मेजर लीडर्स कौन से हैं। NDFB के लीडर्स रंजन दायमरी, बी सरायगोवरा, और उल्फा आई, उल्फा का यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। सो उल्फा का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये आपका ये SOM लिखते हैं वहाँ पे, तो आप भी ऐसे लिख लें, ठीक है। आपको पता है कि 1979 में फिर आपका जो पूरा जो मूवमेंट चला था, फिर 1985 में आपके असम अकॉर्ड हुए थे, असम अकॉर्ड साइन हुआ था। डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ सकते हैं, बिकॉज इस वीडियो में हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो हम ये सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ अगर हम नीचे यहाँ पे बात करें, ये जो पार्ट है, अगर हम इस रीजन की बात करें, तो यहाँ पे आपकी HMAR हमार पीपल्स कन्वेंशन, ये इस रीजन में उन्होंने इंसर्जेंसी का वो अपना जो एजेंडा चलाया। और त्रिपुरा की अगर हम बात करें, ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स, ऑल त्रिपुरा ट्राइबल फोर्स, तो ये त्रिपुरा के रीजन में था, ठीक है। तो इसी तरह से आपने एक और चीज़ समझनी है कि किस तरह से अभी रिसेंट, अगर हम इसी वेन में अगर हम आगे बात करें, तो मणिपुर में जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, काफ़ी महीने हो गया, तो इसमें आपने माइती और कुकी के बीच में, कुकी ग्रुप्स के बीच में जो काफ़ी देर से वायलेंट अल्टरकेशन चल रही है, तो उसको भी समझना है थोड़ा सा। वो हम डिटेल में अलग अलग वीडियो में समझ सकते हैं, इंडिविजुअली एक वीडियो में इतना आपको मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आप उनको अच्छे से यहाँ पे आप आंसर में क्या आपने मेंशन करना है वो आप यहाँ पे कर सकें। तो इसी तरह से आपने ये भी समझना है कि इसमें फॉरेन इंटरवेंशन का कितना रोल रहता है। फॉर एग्जांपल फॉरेन इंटरवेंशन इन फ्यूलिंग आर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ काफ़ी रोल रहा है, चाइनीज़ FSB का जो उनका फेडरल सर्विस ब्यूरो है, प्लस ISI ने भी काफ़ी यहाँ पे आर्म स्मगलिंग और वो सब करवाया है। तो ये आपको डिटेल में समझने के लिए अलग वीडियो हम बना देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो, ठीक है। अभी देखिए, अगर अभी हम आगे समझें, तो अभी रिसेंटली ये जो वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसमें अभी MHA का डेटा क्या है, तो आपको एग्ज़ाम में इसके व्हाट आर दी इम्प्रूवमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपने भी मेंशन करना है। तो सबसे पहले अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें नॉर्थ ईस्ट में, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, वी टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो
आपको क्या करना है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सोर्स हो सकता है कोट करने का, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA डेटा, दैट इज़ मोस्ट रिलायबल सोर्स। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले आई विल गिव यू अ फ्यू डेटा पॉइंट्स दैट यू कैन ऐड दैट आर मेंशन बाय द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए 80%, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है 80% रिडक्शन हुआ है। 80% रिडक्शन किस में हुआ है, इन इंसर्जेंसी related incidents, insurgency incidents since 2014। तो इसका सोर्स कौन है, MHA ने ये आपको सारा जो हम डेटा यहाँ मेंशन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा ही कोट करें। तो ये आपने दिखाना है कि 80% रिडक्शन हो गया है। सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, 89% reduction in the number of deaths। ठीक है, तो 89% रिडक्शन हुई है नंबर ऑफ डेथ्स में। नेक्स्ट आपका आ गया इसमें कि जो सरेंडर किया है जो इंसर्जेंट्स ने, तो अराउंड 6000 इंसर्जेंट्स हैव सरेंडर्ड इन दिस पीरियड। 6000 इंसर्जेंट्स हैव सरेंडर्ड। तो दिस इज ऑल्सो गुड डेवलपमेंट दैट पीपल आर कमिंग बैक टू मेन स्ट्रीम। सो ये आपने डेटा जब कोट करना है, जब आपने ये बताना है कि व्हाट आर दी इम्प्रूवमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस। तो हम कोई भी डेटा कोट करने के बजाय अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा कोट करते हैं, सो दैट बिकम्स वेरी रेलिवेंट एंड द एग्जामिनर विल अवॉर्ड यू गुड डिसेंट मार्क्स। ठीक है, इसके साथ अगर हम एक और चीज़ की बात करते हैं कि जो सैटेलाइट ग्रुप्स हैं, सैटेलाइट कैंप्स हैं, सो सैटेलाइट कैंप्स that operate across the border, satellite camps that operate across the border ठीक है, तो that have been dismantled। तो हमें इसमें म्यांमार गवर्नमेंट का भी साथ मिलता है। म्यांमार गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कोऑपरेटेड। हमने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया था, आपको अगर याद हो, तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये हम सोल्यूशंस या इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जो पॉइंट्स हैं वो बात कर रहे हैं, हमने वो चीज़ तो डिस्कस कर ली, बट आंसर में हमें सोल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पीस अकॉर्ड्स काफ़ी सारे साइन हुए हैं, पीस अकॉर्ड्स, तो आपने कॉमा 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 डाल के वो सारे पीस अकॉर्ड्स आप मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से। सबसे पहले आपका बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, बोडो अकॉर्ड। ठीक है, उसके साथ आपका कार्बी आंगलोंग एरिया, कार्बी अकॉर्ड भी हुआ साइन। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो टॉक अबाउट NLFT। ठीक है, NLFT सेटलमेंट जो हुई थी, साथ में आपका ब्रू रियांग रेफ्यूजी सेटलमेंट हुआ था सिस्टमिक, वो भी आपने मेंशन करना है इसमें। ब्रू रियांग ये ट्राइब्स हैं दो, रेफ्यूजी सेटलमेंट। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स कोट करने ही करने। नेक्स्ट आपका इसके बाद आ गया जो अभी बहुत रिसेंट आपने अगर न्यूज़ में सुना भी होगा, असम और मेघालय में कुछ वो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। तो असम मेघालय इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट, इंटरस्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट। अब ये सारे पॉइंट्स आप कोट करेंगे, जैसे हमने ये वाले पॉइंट्स देखे, आप ये वाले पॉइंट्स कोट करेंगे, ये डेटा सैटेलाइट कैंप्स बस्ट हो गए हैं, पीस अकॉर्ड साइन हुए हैं, ये सारा मेंशन करें तो एग्जामिनर इज डेफिनेटली गोइंग टू रिवॉर्ड। अभी देखिए, जब हम इंसर्जेंसी की बात करते हैं या मिलिटेंसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आफ्सपा का मेंशन करना भी ज़रूरी रहता है। व्हाट इज़ आफ्सपा? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, तो क्या स्टेटस हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आफ्सपा का? तो सबसे पहले 60% एरियाज इन असम,
60% areas in Assam are free from AFSPA. ठीक है, कहाँ कहाँ से हटा दिया गया है? तो रिवोक कहाँ से किया गया है AFSPA को? रिवोक सबसे पहले तो असम के 60% एरिया से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, रिवोक्ड। फिर नागालैंड में कहाँ कितना? नागालैंड की बात करें अगर हम, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है टू फ्रेम अ गुड आंसर। 15 पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया है इसको, 15 पुलिस स्टेशन फ्रॉम नागालैंड। देन नेक्स्ट, अरुणाचल का क्या स्टेटस है? अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है अभी, ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 पुलिस स्टेशंस एग्जिस्ट। अरुणाचल में एग्जिस्ट्स ओनली इन, ये हटा, ये जो मेंशन किया है इतने एरिया से हट गया। यहाँ पे ये बताया है कि सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 2 पुलिस स्टेशन में एग्जिस्ट करता है। और साथ में अगर हम बात करें कंप्लीटली कहाँ से हट गया है, कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपको डेटा ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंटरनल सिक्योरिटी आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है आगे अगर हम देखते हैं और क्या जैसे कदम सरकार ने जो उठाए हैं, स्टेप्स टू बी टेकन और स्टेप्स दैट आर टेकन, क्या स्टेप्स टेकन लिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉर्डर फेंसिंग, जो 24 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, 24 किलोमीटर ऑफ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन त्रिपुरा हैज़ बीन फेंस्ड। ठीक है, इसके बाद आपने वो भी सुना होगा कि बी बोल्ड QIT। ठीक है, ये जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट है असम की, वहाँ पे भी ये वाला अपने बोल्ड QIT सिस्टम अंडर CIBMS। व्हाट इज CIBMS? कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे क्या है, रिवरीन बॉर्डर है। रिवरीन बॉर्डर है तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, बोल्ड QIT इसका। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें, हम और क्या कदम उठा रहे हैं लोगों में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ट्रस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम एक्ट ईस्ट की बात, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज़ एक्ट ईस्ट, तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, कैसे एक्ट ईस्ट करेंगे? इफ़ वी एक्ट नॉर्थ ईस्ट, सो एक्ट ईस्ट थ्रू एक्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ये हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका आ गया इसमें उड़ान, जो आपकी स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, RCS भी कहते हैं इसको, तो ये भी आपका इसमें काफ़ी एक इनिशिएटिव लिया गया है। फिर एक मैत्री सेतु है आपका, मैत्री सेतु। ठीक है, मैत्री सेतु है आपका 1.9 किलोमीटर ब्रिज, कहाँ पे है ये? फेनी रिवर में, ओवर फेनी रिवर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपने मेंशन करने होते हैं पॉइंट्स ये। तो 1.9 किलोमीटर जो आपका ब्रिज बना है फेनी रिवर के ऊपर, कहाँ किसके किसके बीच में है? बिटवीन सबरूम इन त्रिपुरा टू रामगढ़ इन बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 2 जो आपके एरियाज हैं यहाँ पे ये बनाया गया है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दी है, ग्रॉस
budgetary support to national bamboo mission, जिससे नॉर्थ ईस्ट के एरिया के जो लोगों की लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। नेशनल बैम्बू मिशन को 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट दिया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका स्वदेश दर्शन स्कीम है आपकी। ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन करेंगे जितने मैक्सिमम हो सके, तो आपका एक अच्छा आंसर एक बन जाएगा इसमें। स्वदेश दर्शन स्कीम है आपकी। ठीक है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, स्पोर्ट प्रमोशन, फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, और भी स्पोर्ट्स हैं। तो एक क्रिएटिव एंड इफेक्टिव उन चीज़ों में लेके आना है। देन विक्टिम एक रिलीफ फंड, विक्टिम रिलीफ फंड भी सेटअप किया गया, विक्टिम रिलीफ फंड, तो ये भी है। ठीक है, और अगर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट अगर आप इसमें मेंशन करना चाहिए मुझे लगता है आपको, तो वो है आपकी MP बेसबरुआ कमेटी। तो ये आपके आंसर को थोड़ा और इफेक्टिव बना देगा। MP बेसबरुआ कमेटी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? दिस इज ऑन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को कैसे हम कम कर सकते हैं। MP बेसबरुआ कमेटी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के ऊपर है ये। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी यहाँ बताए हैं। अगर आप इन चीज़ों को काफ़ी इफेक्टिवली आप मेंशन करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आई थिंक ये आप इसमें कर सकते हैं। एक और इसमें कमेटी का अगर आप मेंशन कर सकते हैं, BP जीवन रेड्डी कमेटी है एक, BP जीवन रेड्डी कमेटी। इसने क्या बोला है, आफ्सपा को रिपील कर दो, रिपील आफ्सपा। और इसने क्या बोला है कि वो वाले प्रोविज़न किस में डाल दो, इंसर्ट प्रोविजंस इन UAPA, इंसर्ट दोज प्रोविजंस इन UAPA 1967। UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड, और क्या मेन लीडर्स हैं, कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आई होप मैंने आपके कुछ डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए हों, और जो आपको डाउट्स कुछ रह गए, अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट, कि हम इंडिविजुअल, जैसे नागा इंसर्जेंसी है, हैविंग अ फर्स्ट हैंड, सिंस मैंने वहाँ काम भी किया है, तो मैं जो भी आपको शेयर कर सकता हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्लासिफाइड थिंग्स, तो मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग, जो भी ओपन सोर्स में डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश। नागा इंसर्जेंसी होगी, या मणिपुर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, असम की जो बोडो मिलिटेंसी थी, बोडो इंसर्जेंसी थी, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, या और भी नॉर्थ ईस्ट में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसके ऊपर, इफ़ यू वांट अ वीडियो, आप कमेंट्स में मेंशन करें, कमेंट्स में मेंशन करें। या अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नवजोत सिंह _IB पे मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। आई होप दिस वाज एनफ। आई विल कीप इट टू द पॉइंट, नो नॉनसेंस है। विल एंड दिस वीडियो राइट हियर, विल कमिंग अप विद नेक्स्ट वीडियो वेरी शॉर्टली, and please share your feedback, any suggestions, any improvements will be most welcome. Thank you so much friends, I wish you all the best. Jai Hind.